Okay, so the next topic which we are going to study is techniques of administrative improvements, which is chapter 11 of paper 1 of public administration. See, now there are various techniques of administrative improvement. इसमें अलग अलग आते हैं, organization and methods आता है, work study and work management method आता है, e-governance information technology आता है, which are similar, and management tools है अलग अलग, जैसे कि MIS, PERT, CPM etc. So we are going to study all of this in this chapter. तो पहला है organization and methods, O&M बोलते हैं इसको. एडमिनिस्ट्रेशन, देखो, एडमिनिस्ट्रेशन डिमांड्स अ कंटिन्यूस असेसमेंट एंड इम्प्रूवमेंट टू सस्टेन एंड बी बेटर एंड इम्प्रूव. ओके, द इन हाउस मैकेनिज्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू इम्प्रूव कंटिन्यूसली इज रेफर्ड टू ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड्स. ओके, इन हाउस मैकेनिज्म है ये. ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड्स आर कॉमनली नोन एज O&M. ठीक है, इट कंसिडर्स द स्ट्रक्चर, लेआउट, प्रोसीजर एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल मैकेनाइजेशन. O&M is the systematic examination of activities in order to improve the effective use of human and other material resources. ठीक है, it has primary objective of improving the organizational efficiency and control. It considers a very comprehensive view of managerial aspects including functions such as planning, organizing, staffing, directing, coordinating and reporting and budgeting also. The origin of O&M can be traced back to World War II, where there was emphasis on enhancing the productivity and efficiency in the organizational or manufacturing industries etc. during the World War time. ठीक है, फिर O&M methods are originally came from the pioneers of scientific management like Taylor का scientific management, and Gilbert, Gilberth, who gave the time and motion study of scientific management. Okay, so वहाँ से ये develop हुआ O&M methods. O&M was introduced in the Treasury Department of United Kingdom in about 1942, and it was introduced in India in about 1950s after the Paul Appleby Committee of 1954, especially in the Cabinet Secretariat. ठीक है, what are the characteristics of O&M? दो देखो, it should provide services to the organization as well as managers to improve. Okay, O&M is advisory in nature. It is more staff oriented. O&M is a body of experts for the organizational improvement. O&M is just a part of administrative improvement. Okay, there are many other agencies which are involved in administrative improvements. अलग अलग agency मिला के O&M बनाते हैं. O&M is present in all the departments and ministries. In fact, they are part of administration itself. Okay, to in order to increase the efficiency of administration. Now, what are the functions of O&M? देखो, O&M can be said to help to reduce cost, save manpower, simplify procedure, save materials, give speedy operation and improve organization. There are ways of doing it. अभी जो O&M का फंक्शन है ना, वो अलग अलग चीज़ों में बटा हुआ है, एंड टुगेदर ऑल ऑफ दीज प्रोसेसेस फॉर्म्स O&M. एक तो है पहला रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टू डेवलप द बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द ऑर्गेनाइजेशन. फिर है ट्रेनिंग ऑल्सो फॉर अंडरटेकिंग द O&M फंक्शंस इफेक्टिवली. फिर है इन्वेस्टिगेशन, मतलब स्पेशलाइज्ड नॉलेज अबाउट अ पर्टिकुलर फील्ड या फिर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट डेवलप करना. फिर है कोऑर्डिनेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स, सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ओवरलैपिंग एंड अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, एंड O&M plays an important role of coordinator among the various agencies of the organization. फिर है information dissemination. Information regarding O&M work shall be transacted at all the levels of the government or the organization. ठीक है, so it eventually improves the organizational structure. फिर है publications. O&M publishes manuals, guides, research materials, handbooks, bulletins, periodical literature concerning the theory and the practice and the application of improvement of organizational features. Thus, all of this together forms the development of concept of O&M. ठीक है, so E.D. Melrose has
very well defined the roles of O&M, as the O&M is to get the best organization and the best method of organization, basically not just best organization through best method of organization. मतलब उसमें क्या होता है, with the desired end of meeting minimum wastage of resources as well as minimum efforts with maximization of profit and efficiency. अभी O&M में अलग अलग टेक्निक्स है, तो O&M का कॉन्सेप्ट हुआ, O&M के अलग अलग टेक्निक्स होते हैं. अभी यू कैन सी इट इन द फॉर्म ऑफ ट्री चार्ट ऑल्सो. तो O&M के नीचे कौन से मेथड आते हैं, एक तो वर्क स्टडी मेथड है, उसमें ही वर्क मेजरमेंट भी, और फिर बाद में वर्क मेजरमेंट भी मेथड है. ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस आता है वर्क स्टडी के अंदर ही, फिर वर्क सिंप्लीफिकेशन टेक्निक आता है, फिर सर्वे मेथड है, फिर इंस्पेक्शन मेथड है, फिर MIS मेथड है, ऑटोमेशन मेथड है, फॉरवर्ड इंजीनियरिंग है, फॉर्म्स एंड फिलिंग कंट्रोल मेथड है. ये सब को अभी आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे. तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है. सो व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेस ऑफ O&M. अभी O&M के मेथड में भी प्रोसीजरल, मैकेनिकल और टेक्नोलॉजिकल, बट दे आर एम टूवर्ड्स मेकिंग द बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ मैन पावर. ओके. The factors which are responsible for success of O&M are organizational environment. मतलब क्या, for O&M to be successful it is very essential that the organization is open to change and improvement. The organization should also have resources such as finances, tools and technologies to dispose of its responsibilities efficiently, and it should have cordial relations with other agencies also. फिर दूसरा है tools and technologies. मतलब क्या, मतलब ये सब फैक्टर्स है फॉर सक्सेस ऑफ O&M. टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज मतलब क्या, एक्सेस टू सोफिस्टिकेटेड टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स. फिर सपोर्ट है, एडिक्वेट सपोर्ट फ्रॉम पब्लिक एंड एज वेल एज पॉलिटिशियंस भी होना चाहिए. ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो सक्सेसफुल बनाते हैं. और व्हाट आर द इम्पेडिमेंट्स और ब्लॉकेजेस क्या होते हैं, या फिर बैरियर्स क्या होते हैं सक्सेस टूवर्ड्स द सक्सेस ऑफ O&M. इसमें एक्सेसिव कंजर्वेटिवनेस, मतलब क्या, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट बहुत कंजर्वेटिव है, स्टेटस कोइस्ट है, इट मतलब वो चेंज लाएगा ही नहीं. सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अचीव द सक्सेस फॉर O&M टेक्निक्स देयर. फिर है लैक ऑफ रिसोर्सेज, मतलब मैन पावर, फाइनेंस, टूल्स, टेक्नोलॉजीज़, ये सब अगर अच्छे क्वालिटी एंड क्वांटिटी में नहीं है तो टारगेट्स अचीव नहीं होएंगे, तो O&M फेल हो सकता है वहाँ पे. फिर है अनहेल्दी रिलेशंस विद अदर लाइन एजेंसीज, मतलब क्या, कोऑर्डियल रिलेशन होना चाहिए O&M में हर एक एजेंसी के साथ, सो दैट दे कैन इन्फ्लुएंस पॉजिटिवली ईच अदर एंड दे कैन सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस इफेक्टिवली. तो ये होगा कॉन्सेप्ट ऑफ O&M. अभी O&M की फर्स्ट मेथड है वर्क स्टडी मेथड. ओके, इन शॉर्ट इट इज़ अ टेक्निक टू अंडरस्टैंड द बेसिस फॉर अकम्पलिशमेंट ऑफ जॉब. हाँ, अकम्पलिशमेंट ऑफ जॉब को समझने के लिए जो स्टडी किया जाता है, इट इज़ वर्क स्टडी मेथड. अभी इसमें सब टेक्निक्स बहुत सारी है. एक तो है मेथड स्टडी मेथड. ओके, दिस इज़ मतलब क्या, इसमें क्या होता है, सब्जेक्टिंग द वर्क टू सिस्टमेटिक क्रिटिकल स्क्रूटिनी टू मेक इट मोर इफेक्टिव एंड मोर एफिशिएंट. ये हो गया मेथड स्टडी. फिर है वर्क मेजरमेंट. वर्क मेजरमेंट में क्या आता है, वर्क मेजरमेंट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक्स डिज़ाइंस टू एस्टैब्लिश वर्क कंटेंट ऑफ अ स्पेसिफिक टास्क एंड द टाइम टेकन related to that task. Also it mentioned the qualifications of worker to complete that task and a defined level of performance required from the worker. Work measurement technique measures how much work in a given task. Okay, there are variety of work measurement techniques also, each suited for different type of work or organization. Okay, depending example on the uses of data, degree of accuracy, degree of reliability. The common ones are time study method, predetermined motion time study method, predetermined motion time system method था, टाइम स्टडी नहीं, टाइम सिस्टम मेथड. फिर एक्टिव सैम्पलिंग, एनालिटिकल एस्टिमेटिंग, सिंथेसिस. ठीक है, तो इसमें द की यूजेस ऑफ वर्क मेजरमेंट मेथड आर टू मेजर एंड मॉनिटर परफॉर्मेंस, टू डिटरमाइन द वर्कफोर्स लेवल, to compare the working methods, to assist in the preparing of budgets and to provide a basis for incentive payment schemes.
अब इसमें दूसरा है ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस. एन ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस अ प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम कैपेसिटी एंड फंक्शनैलिटी आर असेस्ड इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एफिशिएंसी परफॉर्मेंस एंड इट्स आउटपुट. अब मतलब वर्क स्टडी में ये दो है ना. वर्क मेथड स्टडी में क्या है, मेथड स्टडी इज एग्जामिनिंग अ जॉब एंड फाइंडिंग मोर एफिशिएंट मेथड्स टू परफॉर्म इट. एंड वर्क मेजरमेंट में क्या है, डिटरमाइनिंग द टाइम नेसेसरी टू परफॉर्म द जॉब एंड इट्स एलिमेंट्स. ठीक है, टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी. अब दूसरा है वर्क सिंप्लीफिकेशन टेक्निक. ओके, वर्क सिंप्लीफिकेशन में क्या क्या आता है, द वर्क में सफ़र फ्रॉम इनफेक्टिवनेस एंड इनएफिशिएंसी नॉट बिकॉज ऑफ द work nature itself but because of the complications involved in the work or the procedure. Work simplification is a method to handle the procedural problems of large organizations by equipping first line supervisors with the skills to analyze and improve the procedures by simplifying it. It is actually a combination of number of different techniques. एक तो इसमें है work distribution chart और दूसरा है process chart. अभी work distribution chart मतलब WDC is actually a diagnostic tool. ओके, WDC वर्क डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट क्या करता है, इट आइडेंटिफाइज द कोर प्रोसेसेस ऑफ द वर्क यूनिट, इट डिस्क्राइब्स एंड एनालाइजेस द मेजर फंक्शंस ऑफ अ वर्क यूनिट, इट एलिमिनेट्स द अननेसेसरी एक्टिविटीज़, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है. फिर इट डिस्कवर्स बेटर वेज ऑफ डूइंग द वर्क, देन इट डिपिक्ट्स एंड एनालाइजेस हाउ द पीपल वर्क टुगेदर टू अकम्प्लिश अ डिपार्टमेंटल एक्टिविटी. फिर इट डॉक्यूमेंट्स हाउ मच टाइम इज डेडिकेटेड टू ईच एंड एवरी डिपार्टमेंटल एक्टिविटी एंड बाय whom, okay, in the organization, and it analyzes the individual workers and how they spend their time in the organization, and it and it identifies the symptoms that may be traced to the major functional issues which are leading to complications in the work of the organization. फिर वर्क सिंप्लीफिकेशन में दूसरा है प्रोसेस चार्ट. ओके, प्रोसेस चार्ट आर like they are one of the simpler forms of workflow chart. There are a variety of processes in the chart that have been designed to fulfill the needs of a particular level or a stage of analysis in the organization. They can be used at a detailed level also, मतलब recording an activity of a specific work or workstation or a workplace or an individual also. Okay, it uses a core set of symbols. अब इसमें symbols कौन से है प्रोसेस चार्ट में, देखो, सर्कल मतलब ऑपरेशन मतलब क्या है, इट्स द मेन स्टेप वेयर द पार्ट मटेरियल और अ प्रोडक्ट इज़ यूजुअली मॉडिफाइड और चेंज्ड. फिर है रेक्टेंगल इज़ द इंस्पेक्शन पार्ट, इट इंडिकेट्स अ चेक ऑफ द क्वालिटी और क्वांटिटी. फिर है एरो इज़ द ट्रांसपोर्टेशन पार्ट, इट इंडिकेट्स द मूवमेंट ऑफ वर्कर्स, मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट. फिर है उल्टा ट्रायंगल, इट इंडिकेट्स द स्टोरेज पार्ट, मतलब क्या, इट इज़ अ कंट्रोल स्टेज इन विच द मटेरियल इज़ रिसीव्ड इनटू और इशूड फ्रॉम अ स्टोर और एन आइटम इज़ रिटेन्ड इन द स्टोर हाउस और सप्लाई चेन और इन्वेंट्री. ठीक है, और फिर है लास्ट में डी, एक लंबा डी टाइप, इट डिनोट्स डिले और टेम्पररी शॉर्टेज, इट इंडिकेट्स अ डिले इन द प्रोसेस और एन ड्यू टू एनी इशू. ओके, यही जो प्रोसेस चार्ट्स है दे मे बी यूज्ड एट इवन मोर माइक्रो लेवल एनालिसिस. अब इसमें फिर क्या क्या यूज़ हो सकता है, एज वी मैंशनड कि एक पर्टिकुलर एक्टिविटी, एक पर्टिकुलर दिन की एक्टिविटी, वो सब भी यूज़ की जा सकती है. फिर नेक्स्ट है वर्क सिंप्लीफिकेशन में ABC एनालिसिस. ABC एनालिसिस इज़ अ टाइप ऑफ एनालिसिस ऑफ डिवाइडिंग इनटू 3 groups called A group which indicates critical, B group which indicates semi-critical, and C group which indicates non-critical activities. This analysis helps in prioritization of the work. फिर है चौथा नेटवर्क एनालिसिस. नेटवर्क एनालिसिस इज द जनरल टर्म अंडर वर्क सिंप्लीफिकेशन टेक्निक्स. नेटवर्क एनालिसिस इज अ जनरल टर्म गिवन टू सर्टेन स्पेसिफिक टेक्निक्स. ओके, जो प्लानिंग, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल के टेक्निक्स से प्रोजेक्ट्स के, उसको ये नाम दिया गया है. देर आर 2 डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ नेटवर्क एनालिसिस विच आर डेवलप्ड इंडिपेंडेंटली इन अबाउट 1950. एक तो है PERT मतलब प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, एंड दूसरी है CPM क्रिटिकल पाथ मेथड. वो दोनों को भी अभी अच्छे से पढ़ेंगे. अभी इसमें पहला है CPM क्रिटिकल पाथ मेथड. ओके, CPM
models the activities and the events of a project as a network. Activities are depicted as nodes on the network, and the events that signify the beginning as the events that signify the beginning and the ending of activities. They are depicted on the lines or arcs between these nodes. ठीक है, मतलब activities are depicted as nodes and the events that signify the beginning and the ending of these activities are depicted as lines or arcs. ठीक है, फिर एक टिपिकल डायग्राम बनाना क्रिटिकल पाथ मेथड का. अभी द स्टेप्स इन्वॉल्व इन CPM प्रोजेक्ट प्लानिंग, एक तो पहला है टू स्पेसिफाई द इंडिविजुअल एक्टिविटीज़, दूसरा है टू डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ दीज एक्टिविटीज़, मतलब सम एक्टिविटीज़ आर डिपेंडेंट ऑन कंप्लीशन ऑफ अदर एक्टिविटीज़, तो वो देख के प्लान ड्रॉ करना पड़ता है. फिर तीसरा है तो ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम. द CPM ओरिजिनली वॉज डेवलप्ड एज एन एक्टिविटी ऑन नोड नेटवर्क, बट some project planners prefer to specify it as activities on the arcs method, मतलब on the line उस पर एक्टिविटी लिखने के लिए ऐसा CPM को डेवलप किया है बहुत लोगों ने. फिर द नेक्स्ट इज चौथा पॉइंट है टू एस्टिमेट द कंप्लीशन टाइम ऑफ ईच एक्टिविटी, मतलब द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट each activity can be estimated using the past experience or the estimates or the knowledge of the person. CPM is actually therefore a deterministic model that does not take into account variations in the completion time. So only one number is used for an activity's time to estimate, तो वेरिएशन नहीं देखा जाता उसमें इतना. फिर है इम्पोर्टेंट पॉइंट है टू आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पाथ, मतलब द लॉन्गेस्ट पाथ थ्रू द नेटवर्क. The critical path is the longest duration path through the network. The significance of the critical path is that the activities that lie on it cannot be delayed without delaying the project itself because of its impact on the entire project. So the critical path analysis is an important aspect of project planning. The critical path can be identified by determining the following 4 parameters for each activity. एक तो है earliest starting time, फिर है अर्लीस्ट फिनिश टाइम, फिर है लेटेस्ट फिनिश टाइम एंड लेटेस्ट स्टार्ट टाइम. ठीक है, और फिर बीच में आता है स्लैक. स्लैक इज द अमाउंट ऑफ टाइम दैट एन एक्टिविटी कैन बी डिलेड पास्ट इट्स अर्लीस्ट स्टार्ट और अर्लीस्ट फिनिश टाइम विदाउट डिलेइंग द प्रोजेक्ट इटसेल्फ. सो द क्रिटिकल पाथ इज द पाथ थ्रू द प्रोजेक्ट नेटवर्क इन विच नन ऑफ द एक्टिविटीज हैव अ स्लैक. दैट इज द पाथ फॉर विच ES इज इक्वल टू LS. ES मतलब earliest start time is equal to latest start time, and also EF is equal to LF, मतलब earliest finish time is equal to latest finish time for all activities in the path. A delay in the critical path delays the project. Similarly, to accelerate the project, it is necessary to reduce the total time required for the activities in the critical path. ठीक है, और फिर आता है to update the CPM diagram as the project progresses. फिर करते हैं इवैल्यूएशन ऑफ द CPM. अभी CPM के कुछ बेनिफिट्स है. बेनिफिट्स में क्या आता है, CPM प्रोवाइड्स द ओवरऑल रिक्वायरमेंट एंड द रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ टाइम, टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन रिसोर्सेज. इट प्रोवाइड्स द रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट एट एवरी स्टेज ऑफ द प्रोजेक्ट. Therefore, it provides the requirement at all the overall requirements of the project. CPM is an effective tool for effective and efficient communication. CPM allows prioritization of the activities and identifies the critical activities. फिर CPM provides a geographical analysis of the project as well as a graphical view of the development of project. Geographical analysis मतलब क्या कि कौन से ऑन साइट प्रॉब्लम्स आ रहे हैं बिकॉज ऑफ विच द प्रोजेक्ट इज बीइंग डिलेड. ठीक है, जोग्राफिकल मतलब नॉट इन टर्म्स ऑफ जोग्राफी इटसेल्फ बट इन टर्म्स ऑफ द वर्क जो एक्टिविटी है उसमें. CPM प्रेडिक्ट्स द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट. और फिर CPM ये बेनिफिट्स हो गए. अभी लेट्स टॉक अबाउट लिमिटेशंस. So CPM is basically a deterministic model that does not take into account the variation in the completion time. So only एक particular time ही वो device derive करता है, but which can change or it does not take that into account.
सो इट इज़ सूटेबल फॉर प्रोजेक्ट विच आर रूटीन टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, मतलब जहाँ पे सिंपल प्रोजेक्ट्स है, जहाँ पे ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, अलग अलग वेरिएबल्स और फैक्टर्स नहीं है जो टाइम को चेंज करेंगे, तो उसके लिए वो सूटेबल है, बट नॉट फॉर मोर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स. फिर CPM डज नॉट प्रोवाइड एनी स्कोप फॉर deviations and variations, so it is not suitable for projects which have variations and deviation. बेसिकली अलग अलग जगह पर अलग, समझो सिटी में या फिर विलेज में अलग अलग जगह पर अलग अलग फैक्टर्स अफेक्ट करते कोई भी प्रोजेक्ट को, तो वो सब इतना कंसिडर नहीं करता CPM, सो ये लिमिटेशन है. फिर अभी PERT के बारे में बात करते हैं. PERT इज़ प्रोग्राम इवेल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक. ठीक है, देखो, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स रिक्वायर अ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज, सम ऑफ विच में must be performed sequentially and other tasks which can be performed parallelly also. ठीक है, the collection of series and parallel tasks can be modeled as a network and in, तो ये जो कुछ टास्क जो है वो, मतलब समझो एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, उसमें कुछ चीज़ें एक चीज़ ख़त्म होने के बाद ही कर सकते हैं और दूसरी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक चीज़ चलते हुए भी पैरेलली कर सकते हैं. फिर इन 1957 द क्रिटिकल पाथ मेथड वाज developed as a network model for project management, and CPM is a deterministic model. It uses fixed time to estimate for an activity. While CPM is easy to understand, it does not consider the time variations. So okay, फिर PERT का CPM थोड़ा inefficient बन रही थी, इसीलिए PERT का डेवलपमेंट हुआ, प्रोग्राम इवेल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक. इट इज़ अ नेटवर्क मॉडल that allows for randomness in the activity and the completion time. PERT was developed in about late 1950s for the US Navy project. ठीक है, it has the potential to reduce both the time and the cost required for completion of project by understanding the effective development of the project. अभी इसमें नेटवर्क डायग्राम क्या है, एक नेटवर्क डायग्राम बनाना PERT का. अभी इसमें PERT में ना, बिफोर एन एक्टिविटी कैन बिगिन ऑल ऑफ इट्स प्रीडिसेसर एक्टिविटीज़ मस्ट बी कंप्लीटेड. ऐसा नहीं होता, पैरेलल एक्टिविटीज़ को भी कंसिडर किया जाता है. प्रोजेक्ट नेटवर्क मोड जो मॉडल्स जो होते हैं ना, इट रिप्रेजेंट्स वेरियस माइलस्टोन्स एंड आर्क्स एंड नोड्स इन PERT, जो अभी एग्जांपल एक डायग्राम में दिख रहा है PERT के, विच यू कैन फाइंड ऑन गूगल और एनीवेयर. अभी PERT क्या है, इट इज़ एक्टिविटी ऑन नोड. ठीक है, और CPM क्या था, इट वाज एक्टिविटी ऑन आर्क. ठीक है, ये दो चीज़ें बेसिक डिफरेंस है PERT और CPM में. PERT के प्लानिंग में देयर आर फॉलोइंग स्टेप्स. एक तो है पहले टू आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ एंड माइलस्टोन्स. दीज एक्टिविटीज़ आर द टास्क रिक्वायर्ड टू बी कंप्लीटेड इन द प्रोजेक्ट, जो माइलस्टोन्स है समझो. Next is to determine the proper sequence of the activities. मतलब क्या, this step may be combined with the activity identification step, since the activity sequence is evident and available for some tasks. For some tasks it may not be available because वो parallelly चलते हैं. Other tasks may require some more analysis to determine the exact order in order of which they must be performed. ठीक है, फिर to construct the network diagram. फिर क्या होता है, टू एस्टिमेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच एक्टिविटी. देखो, इसमें टाइम वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा डिटेल में PERT में देखा जाता है, इसीलिए वो ज़्यादा एफिशिएंट है CPM से विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम कॉन्सेप्ट. अभी इसमें वीक्स आर कॉमनली यूज्ड एज यूनिट ऑफ टाइम. ओके, तो जो वीक्स होते हैं ना, वो जो PERT के डायग्राम में और CPM के डायग्राम में क्या डिफरेंस है, जो नोड से ना वहाँ पे एक्टिविटी है, और जो लाइन है ना आर्क से, वो वहाँ पे टाइम लाइन है. टाइम मतलब 1 वीक या 2 वीक वो लिखा जाता है. और CPM में जो आर्क्स या फिर लाइंस थे, उस पर एक्टिविटी था, और फिर जो नोड्स थे वहाँ पे टाइम दिया था. ठीक है, अभी PERT में वीक्स आर कॉमनली यूज्ड एज यूनिट ऑफ टाइम फॉर एक्टिविटी का कंप्लीशन, बट और एनी कंसिस्टेंट यूनिट ऑफ टाइम कैन बी यूज. ठीक है, मतलब 1 day 2 day ऐसा कुछ भी यूज़ कर सकते हैं. अ डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ PERT इज़
its ability to deal with the uncertainty in the activity completion time. मतलब for each activity the model usually includes 3 time estimates. एक तो है optimistic time, मतलब generally the shortest time in which the activity can be completed. It is a common practice to specify optimistic time to be there, and फिर है most likely time, the completion time having the highest probability. ओके जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है कि इतने टाइम में हो सकता है. ऑप्टिमिस्टिक टाइम आइडियल टाइम है. मोस्ट लाइकली टाइम हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी टाइम है गिवन ऑल द सर्कमस्टेंसेस एंड फैक्टर्स. ठीक है. और तीसरा है पेसिमिस्टिक टाइम. अभी पेसिमिस्टिक टाइम क्या होता है? इट इज़ द लॉन्गेस्ट टाइम दैट एनी एक्टिविटी माइट रिक्वायर. मतलब मैक्स टू मैक्स इतना टाइम लग जाएगा अगर सब कुछ डिले हो गया तो. तो अभी ये 3 टाइम लेते हैं और उसका एक फॉर्मूला बनता है टू फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड टाइम, एक्चुअल एक्सपेक्टेड टाइम. सो एक्चुअल एक्सपेक्टेड टाइम इज इक्वल टू ऑप्टिमिस्टिक टाइम प्लस 4 इंटू मोस्ट लाइकली टाइम प्लस पेसिमिस्टिक टाइम डिवाइडेड बाय 6. ठीक है. और ये जो एक्सपेक्टेड टाइम आता है वो नेटवर्क डायग्राम के पर्ट के डायग्राम पर उसको लिखा जाता है वो लाइन पे. ठीक है. और ये सारे टाइम्स जो थे उनको स्टैंडर्ड डिविएशन के साथ भी यू कैन फाइंड इट, और मतलब हल्का स्टैंडर्ड डिविएशन रख कर भी यू कैन फाइंड, और यू कैन फाइंड देम गिवन द सर्कमस्टेंसेस और द इश्यूज इन द प्रोजेक्ट, एंड उसके हिसाब से फिर एक्सपेक्टेड टाइम को यू कैन फाइंड. नेक्स्ट इज टू उसमें ही पर्ट में टू डिटरमाइन द क्रिटिकल पाथ. ठीक है. द क्रिटिकल पाथ इज डिटरमाइंड बाय एडिंग द टाइम्स फॉर द एक्टिविटीज इन ईच सीक्वेंस एंड डिटरमाइनिंग द लॉन्गेस्ट पाथ इन द प्रोजेक्ट. अभी इवैल्यूएशन करते हैं पर्ट का. देखो देयर आर बेनिफिट्स. जो बेनिफिट्स है पर्ट के उसमें क्या कहते हैं? पर्ट इज अ प्रोबेबिलिस्टिक ओके मेथड और सीपीएम कहता है डिटर्मिनिस्टिक मेथड. सो प्रोबेबिलिस्टिक है पर्ट. इसके लिए इट एस्टैब्लिशेस 3 डिफरेंट क्रिटिकल पाथ्स. एक तो है ऑप्टिमिस्टिक पाथ, दूसरा है पेसिमिस्टिक पाथ एंड तीसरा है मोस्ट लाइकली पाथ. और इसके हिसाब से बनता है एक्सपेक्टेड टाइम पाथ. फिर पर्ट अनलाइक सीपीएम इज़ वेरी फ्लेक्सिबल. PERT is useful because it provides following information. एक तो expected project completion time, फिर probability of completion time before specified date, फिर the critical path of activities that directly impact the completion time, then the activities that have slack time that can lend to the increase or decrease in the critical path. सो इवेंचुअली सब टाइम के पैरामीटर जितने भी है वो बेनिफिट्स आ जाते हैं पर्ट के. और लिमिटेशन क्या है पर्ट के? द एक्टिविटी टाइम दैट एस्टिमेट्स द टोटल टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट इज एक्चुअली वेरी मच सब्जेक्टिव एंड डिपेंड्स ऑन द जजमेंट ऑफ द इंजीनियर और द प्रोजेक्ट मैनेजर. In cases where there is a little experience in performing the activity, the numbers may be only on the guessing factor. In other cases, if the person or a group of person performing the activity can have biases towards the estimate or can have vested interest also, which can increase or decrease the project time as per his guessing quality or talent. फिर तीसरा है MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. A management information system provides information that is needed to manage the organization efficiently and effectively. Management information systems involve 3 primary resources. एक तो people, दूसरा technology, तीसरा information for decision making. ठीक है. MIS provides a decision making support system which helps the managers to undertake a variety of functions including planning, coordinating, directing, controlling, etc. in order to achieve the final goals of the organizations. The decisions according to Simon suffers from bounded situation. The greater is the access to information, the better can be the decisions. Therefore, MIS, management information system, is a solution to the problem presented by Simon of bounded situation. So MIS allows establishing a network of information in the managerial system to help the managers to take an informed and appropriate decision. MIS has got much needed growth with help of information communication technology. So what are the advantages of MIS? So MIS helps in
Efficient decision making. MIS allows organization to be decentralized. It provides the facilities for independent decision making. MIS allows better participation of people of organization in decision making, thereby helping them in a democratization. Where MIS provides real time information, that the information which is uploaded can be updated with respect to real time situations and can be accessed at any time also. Where MIS provides integrated information as well as targeted information. MIS reduces overlapping, thereby reducing the wastage in terms of resources. MIS helps in establishing better coordination. It provides mutual understanding between the workers across the hierarchy and of the organization, thereby building healthy relations between the members of the organization from each level. Where MIS helps to establish scientific understanding of any of parameters of decision making. MIS provides feedback also. ओके सो ये डेटा एनालिसिस बहुत अच्छे तरीके से करता है MIS. फिर व्हाट आर द इम्पेडिमेंट्स ऑफ MIS या फिर चैलेंजेस या फिर ब्लॉकेजेस. सो देर आर सम बैरियर्स इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ MIS. एक तो MIS रिक्वायर्स इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क. Without the electronic network, MIS can't be established. दूसरा है the organization requires managerial and political will and adequate finance and establishment for maintenance of MIS. Effective MIS system maintain करने के लिए. MIS can be successful only when there is acceptance for democratization and decentralizations in the organization. मतलब कुछ organization बहुत ही hierarchy oriented रहते हैं और जहाँ जो organization में decentralized चलता है वहाँ पे MIS ज़्यादा effective रहता है. मतलब MIS की डिसेंट्रलाइजेशन की फिलोसफी जिस ऑर्गेनाइजेशन में वहाँ पे MIS ज़्यादा इफेक्टिव होगा. और चौथा है कि MIS रिक्वायर्स हाईली टेक्निकल एंड ट्रेन स्किल्ड पर्सन्स. फिर नेक्स्ट मेथड है सर्वे. अभी सर्वे का क्या मैकेनिज्म है. इट इज़ रिलेटेड टू द टेक्निक ऑफ गैदरिंग डेटा एंड एनालाइजिंग इट. ठीक है. बेसिकली गैदरिंग डेटा इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वे. और फिर मैनेजमेंट एनालाइजेस इट ऑन वन और मोर पैरामीटर्स एंड फिर डिसीजन मेकिंग होता है. सो व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ सर्वे मेथड. एक तो है एज कम्पेयर टू अदर मेथड सर्वे यील्ड अ ब्रॉडर रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन. सर्वेज आर इफेक्टिव टू प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन एंड टू गैदर इंफॉर्मेशन फॉर प्लानिंग एंड टारगेटेड डिसीजन मेकिंग. इट यूजुअली इज़ फास्टर एंड चीपर इन सम केसेस. इट इज़ रिलायबल एंड द बिकॉज करंट सिनेरियो पे सर्वे हुआ होता है. देयरफॉर जो ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्प करता है. इट इज़ रिलेटिवली सिंपल टू एनालाइज द डेटा ऑफ सर्वे. फिर देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सर्वे. एक तो है प्रिलिमिनरी सर्वे, फिर है ओवरऑल सर्वे, फिर है परफॉर्मेंस एंड एक्टिविटी सर्वे, फिर है ऑर्गेनाइजेशनल सर्वे, फिर है फंक्शनल सर्वे, फिर है प्रोसीजरल सर्वे. इट सर्वेज द टूल्स टेक्निक्स मेथड्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. फिर है फॉलोअप सर्वे. ये सारे सर्वेज है विच कैन बी यूज्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्रूव इट्स एफिशिएंसी. फिर नेक्स्ट मेथड है इंस्पेक्शन. अभी इंस्पेक्शन इज़ मेथड ऑफ ONM. ये सारे मेथड ऑफ ONM ही है. अपार्ट फ्रॉम जो टॉप मैनेजर्स है या फिर इंस्पेक्टर्स है इन द कंपनी, दे डू इंस्पेक्शन ऑफ वेरियस प्रोसीजर्स and various tools and techniques which are taking place in the organizations, which are being used in the organization. उनकी efficiency, उनका maintenance का analysis भी होता है. So this all is done under inspection. फिर चौथा है next is automation. Automation simply means the use of mechanical processes in office. मतलब the mechanization is now being applied to accounting, filling, tabulating, punching, sorting, stamping and even variety of works. मतलब computational work के लिए अभी automation यूज़ हो रहा है, जैसे कि कोई मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट या फिर कंप्यूटर भी. ठीक है. बट इसका एक ही इशू है कि इट ऑटोमेशन में लीड टू अनएम्प्लॉयमेंट. फिर दूसरा है फॉर्म्स एंड कंट्रोल. फॉर्म कंट्रोल एंड फिलिंग सिस्टम. ठीक है. फॉर्म कंट्रोल एंड फिलिंग सिस्टम कैन हेल्प द मैनेजमेंट इन इम्प्रूविंग द इंटरनल कम्युनिकेशंस एंड सिंप्लीफाई द प्रोसीजर्स.
it is important to devise an up-to-date form for various agencies of the government. अननेसेसरी फॉर्म्स नहीं यूज़ करने चाहिए, एक एफिशिएंट फॉर्म बनना चाहिए. सो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, जो भी ऑर्गेनाइजेशनल के रिक्वायरमेंट्स है उस हिसाब से एक अच्छा फॉर्म बनना चाहिए और वही सब ने फिलअप करने चाहिए और उससे एनालिसिस होता है. दैट इज़ वन ऑफ द मेथड. फिर नेक्स्ट मेथड इज़ अबाउट फॉरवर्ड इंजीनियरिंग. फॉरवर्ड इंजीनियरिंग प्रोवाइड्स अ फाउंडेशनल प्रीमाइस for strategic gearing of organizations, keeping in the view its existing and new capabilities with respect to the current and anticipated challenge. Anticipated challenge ये important word है. It is an exercise in the forward analysis of the company or organizational development by placing oneself in the future, okay, and imagining the challenges it can face and being proactive in order to solve it. So it is basically being proactive. Forward engineering, फॉरवर्ड इंजीनियरिंग में बहुत सारे टेक्निक्स हैं. एक तो BOW टेक्निक है, बैरियर ऑब्स्टेकल वीकनेस, इसमें एनालिसिस किया जाता है. फिर ये हो गया BOW एनालिसिस. फिर है सिनेमैट्रिक्स एनालिसिस. CI stands for controllable internal and E stands for non controllable external. ठीक है. कंट्रोलेबल इंटरनल मतलब एम्प्लॉयज़, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कोऑर्डिनेशन, रेम्यूनरेशन, और नॉन कंट्रोलेबल एक्सटर्नल मतलब इंटरनेशनल सिनारियो, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एक्सेट्रा. फिर है SOSO विंडो. SOSO मतलब सेल्फ अदर एंड सेल्फ अदर विंडो. इट इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ कंट्रोलेबल एंड नॉन कंट्रोलेबल, अगेन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स. ठीक है. इट इंक्लूड्स द वीकनेस, it includes the comparisons of one's weakness with the weakness of other competitors and one's strength with the strength of other competitors. फिर है SWOT, SPOT analysis. SWOT वो तो मालूम है. SWOT analysis is a strategic planning method used to evaluate the strength, weakness और limitation, opportunities and threats. ठीक है. Strength, limitation, opportunity या फिर strength, weakness, opportunities, threat इन द प्रोजेक्ट और बिजनेस वेंचर. और दूसरा है स्पॉट एनालिसिस. स्पॉट मतलब क्या, स्ट्रेंथ, प्रॉब्लम्स, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट. वही है, वो वर्ड को ऐसा और वैसा यूज़ किया जाता है. दे आर बेसिकली स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टूल्स यूज टू हेल्प द पीपल टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस अबाउट परस्यूइंग अ प्लान और एक्शन. फिर है फेट एनालिसिस. फेट एनालिसिस एक्चुअली it is a future anticipated analysis for future anticipated trends and events to be proactive and be ready for the challenges. ठीक है. तो ये हो गया techniques. अभी next we are going to talk about one small part in this chapter which is included in the syllabus. It's about the e-governance. E-governance which is formed on the basis of information technology only. ठीक है. तो e-governance and information technology एक साथ हो जाते हैं. अब इसमें वी आर गोइंग टू यूज़ एंड अंडरस्टैंड द समरी ऑफ सेकेंड ARC रिपोर्ट. सेकेंड ARC रिपोर्ट ऑन प्रमोटिंग ई गवर्नेंस को. ओके. तो ये कौन सा रिपोर्ट है? 11th रिपोर्ट है सेकेंड ARC का, विच इज़ टाइटल्ड एज प्रमोटिंग ई गवर्नेंस द स्मार्ट वे फॉरवर्ड. ठीक है. अभी देखो इसमें क्या है, ई गवर्नेंस मतलब इसमें का जो ई है इट इज़ एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक. ओके. इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस. अभी रीज़न फॉर इंक्रीजिंग इन द ई गवर्नेंस क्या क्या है? देखो, गवर्नेंस हैज़ बिकम मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स इन द लास्ट डेकेड एंड द सिटीजन्स एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज मैनीफोल्ड. It increases the reach of the government both geographically and demographically when the government uses the e-governance concept. It reduces the red tapeism, मतलब टाइम भी बहुत कम लगता है कोई भी प्रोसीजर को कंप्लीट होने के लिए. एंड promotes the continuous improvement in the quality of governance and better communication towards a larger sections of the society. मतलब पहले विलेज तक भी लेके जाता है गवर्नेंस अभी by using e-governance concept. It involves using efficient storage, retrieval of data, processing of data, transparency, responsive, simplified mechanism, reduction of cost of governance,
better interface between government and citizens, okay, and faster interface also. Now what are stages of e-governance? एक तो पहला है कंप्यूटराइजेशन, पहले आया कंप्यूटर इन गवर्नमेंट ऑफिसेस, फिर आया नेटवर्किंग, मतलब नेटवर्किंग बिटवीन गवर्नमेंट एंटिटीज़ हुआ दो गवर्नमेंट ऑफिसेस के बीच में, फिर आया ऑनलाइन प्रेजेंस, मतलब गवर्नमेंट क्या करने लगा, इट स्टार्टेड यूजिंग वेबसाइट, और फिर चौथा आया ऑनलाइन लिटरेसी, मतलब इसमें क्या आ गया, ऑनलाइन लिटरेसी एक पार्ट है उसका, ऑनलाइन इंटरएक्टिविटी है मेन कॉन्सेप्ट, इसमें क्या क्या आ गया, एक तो ऑनलाइन लिटरेसी, ऑनलाइन सबमिशन, ग्रीवियंस रिट्रेसल, तो ये सब गवर्नेंस के हिसाब से वी आर टॉकिंग अबाउट, ओके। गवर्नेंस में पहले कंप्यूटर आया, फिर नेटवर्किंग हुआ, फिर ऑनलाइन प्रेजेंस आया, फिर ऑनलाइन इंटरएक्टिविटी हुआ। अभी व्हाट आर द टाइप ऑफ इंटरैक्शंस गवर्नमेंट के साथ इन ई गवर्नेंस? एक तो है G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ठीक है, फिर है G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन, फिर है G2B, गवर्नमेंट टू बिजनेस, फिर है G2G, एम्प्लॉयज़, मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, वो एक है से, ठीक है। फिर UN ई गवर्नमेंट सर्वे हुआ था टू प्रिपेयर ई गवर्नेंस रेडीनेस इंडेक्स, इट्स components were to measure the availability of resources for presence for development of e-governance in the country, मतलब बेसिकली टेलीकम्युनिकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर को, it actually helps in also the human capital index जो रिपोर्ट है उसमें also this factor helps because it determines the quality of life, because quality of governance determines the quality of life, ठीक है। ये जो गवर्नमेंट का सर्विसेज है बेसिकली, जो बैक एंड सर्विसेज है विच रिफर टू द इंटरनल ऑपरेशन विच इज़ नॉट एक्चुअली विजिबल टू गवर्नमेंट जनरल पब्लिक, ओके। और दूसरा कौन सा साइड है, एक तो बैक एंड हो गया, दूसरा है फ्रंट एंड विच रिफर्स टू द गवर्नमेंट, ओके, व्हेन इट इंटरैक्ट्स विद द सिटीजन्स। दे बोथ रिक्वायर इंटीग्रेशन एंड कंसोलिडेशन एंड इनोवेशन टू अचीव मैक्सिमम कॉस्ट सेविंग एंड इम्प्रोवाइज सर्विस डिलीवरी। तो यहाँ पे ई गवर्नेंस हेल्प करता है। It says that an effective connected government is about stronger front end as well as a stronger back end, ठीक है। तो जो फ्रंट एंड पार्ट है ना उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ई गवर्नेंस का बहुत इंपॉर्टेंस है। नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ई गवर्नेंस? एक तो है इंटरनली कौन से आते हैं, इट रिड्यूसेस द ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इट सिंप्लीफाइज द ब्यूरोक्रेटिक कॉस्ट, फिर स्क्रूटिनी ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, फिर एक्सटर्नली क्या कौन से फास्टर सर्विस डिलीवरी, एक्सटर्नली मतलब फ्रंट एंड पर, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सर्विस डिलीवरी, फिर ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन, देयरफॉर ग्रेटर सिटीजन एम्पावरमेंट, ठीक है। ये जो सेकेंड ARC इट इज़ मोस्टली रिलेटेड टू द गवर्नमेंटल एस्पेक्ट, ओके, ऑफ ई गवर्नेंस, जो इट इज़ हाउ ई गवर्नेंस इज डेवलप्ड एंड इट इज़ हेल्पिंग इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फिर देखो 1970s में ना गवर्नमेंट हैड एस्टेब्लिश डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर 1977 में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर वॉज सेटअप एज अ फर्स्ट मेजर स्टेप टूवर्ड्स ई गवर्नमेंट, फिर 1980s में यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स बढ़ा, फिर 1999 में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई, फिर 2000 में 12 पॉइंट एजेंडा आया फॉर ई गवर्नेंस, ठीक है। ये सारे डेवलपमेंट्स थे, जेनेरिक डेवलपमेंट्स जिसको बोलते हैं। फिर G2C इनिशिएटिव्स, मतलब गवर्नमेंट टू सिटीजन इनिशिएटिव्स बहुत सारे बढ़ गए। कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स उसमें एक एग्जांपल है, मतलब जो डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स अभी कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स कर रहे हैं, तो वो भी ई गवर्नेंस का ही पार्ट है। फिर गवर्नमेंट टू बिजनेस में कौन सा है, MCA 21 का जो कॉन्सेप्ट है, फिर ई नाम वो वाला कॉन्सेप्ट। सो ये सारे गवर्नमेंट टू बिजनेस के कॉन्सेप्ट है। ई गवर्नेंस इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ रिफॉर्म्स इन द गवर्नेंस स्ट्रक्चर। It is important to develop a secure structure. It is important to develop a sustainable e-governance structure and also develop it into local languages and interfaces. So ये सारे recommendation, ये second ARC is full of recommendations, ठीक है। फिर one size fit all can't work
इन ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एंड ऑल द एरियाज ऑफ द कंट्री। तो उस हिसाब से ई गवर्नेंस को अलग अलग जगह पे टेलर मेड करना चाहिए। फिर मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए, मतलब एक ही साइट पर बहुत सारी चीज़ें मिल जानी चाहिए। देखो, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, he was a great visionary with respect to the development of e-governance in India. He always emphasized on e-governance uh, for it to be more citizen friendly. Okay, he said it is surely a challenge to provide a seamless service to a country of a billion, but it can be developed systematically and it will eventually help in the development of our country. ठीक है, so building efficient relations with all the stakeholders of the community is sine qua non for successful implementation of government initiatives, and इसमें सबसे ज़्यादा e-governance can help because of its multi-dimensional character। मतलब एग्जाम्पल अलग अलग मल्टीमीडिया यूजेस और फिर मल्टीलिंगुअल यूजेस, ये सब यूज़ करके बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाया जा सकता है, एंड इट हेल्प इन द बेटर डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, ये जो ई गवर्नेंस की अवेयरनेस एक्सरसाइजेज है दे शैल बी इंक्रीज्ड, ये एक रिकमेंडेशन है। सो फिर एज पर OECD देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट। ठीक है, एक तो है इंफॉर्मेशन जो ऑनलाइन मिलती है, फिर दूसरी है इंटरेक्शन, मतलब एक सिटीज़न ऑनलाइन इंफॉर्मेशन देखेगा कोई गवर्नमेंट साइट पे। दूसरा इंटरेक्शन, वो फिर इंक्वायरी करेगा अगर उसको कुछ डाउट है। फिर है ट्रांजैक्शन, अगर कोई सर्विस का पेमेंट है या फिर कुछ या फिर गवर्नमेंट वो सिटीज़न को कुछ दे रही है तो वो ट्रांजैक्शन होगा। और चौथा है ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये एक्चुअली दिस एक्चुअली बिकम्स अ सर्विस। सो ये 4 स्टेजेस ऑफ ई गवर्नेंस गिवन बाय OECD: इंफॉर्मेशन, इंटरेक्शन, ट्रांजैक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ई गवर्नेंस कैन हेल्प इन बोथ द वेज, एक तो इंडिविजुअल डेवलपमेंट एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, अभी इसमें ना जो टेक्नोलॉजी उसकी स्केलेबिलिटी भी होनी चाहिए, एंड इट शैल इंक्रीज। मतलब अभी 2G आया, 4G आया, अभी 5G आएगा, तो वो टेक्नोलॉजी को लेनी चाहिए, उसको स्केल अप करना चाहिए इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फास्टर सर्विसेज टू ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एट ऑल एरियाज। ठीक है, जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो हो रही है उसके साथ ई गवर्नेंस भी ग्रो होना चाहिए। It is important to develop a national e-governance enterprise architecture। एक बेसिक फिलोसफी या फिर पॉलिसी या फिर स्ट्रक्चर होना चाहिए, आर्किटेक्चर होना चाहिए बेसिकली ई गवर्नेंस डेवलपमेंट का। टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज़ का एक डिपार्टमेंट होना चाहिए रिलेटेड टू ई गवर्नेंस इन द गवर्नमेंट, एंड द गवर्नमेंट शैल फोकस ऑन द ईज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ई गवर्नेंस स्ट्रक्चर या फिर सर्विसेज। मतलब जितना ईज़ के साथ वो पहुँचेगी सिटीजन्स की तरफ उतना ज़्यादा उसका एफिशिएंसी बढ़ेगा। देयर शैल बी एनफोर्समेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स। ओके, स्टैंडर्ड सेट करने चाहिए तो कि ताकि कोई डेटा को मिसयूज़ ना करे। इवैल्यूएशन एंड मॉनिटरिंग होना चाहिए ऑफ एवरी ई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी यूज़ हो सकती है इन ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट, एग्जाम्पल ई सेवा केंद्र के साथ, फिर फ्रेंचाइजी भी बना सकते हैं एक्सेट्रा। You have to develop the infrastructure of the e-governance for the e-governance जो दूर दूर तक पहुंच पाए, जैसे ये पोस्टल सर्विसेज पहुंचती है उतना वो लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमेशा होते ही रहना चाहिए। फिर ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट एंड ट्रेनिंग का एक डिपार्टमेंट होना चाहिए इन ई गवर्नेंस सेक्टर, ताकि जो ईज़ ऑफ एंड सिंप्लिसिटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्विसेज है वो बढ़े। फिर एग्जांपल क्या, एक कॉमन सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, CSC जो होता है ना, कॉमन सर्विस सेंटर्स, वैसे इनिशिएटिव्स और बढ़ने चाहिए। फिर मिशन मोड प्रोजेक्ट यूज़ होने चाहिए, पायलट मोड प्रोजेक्ट्स डेवलप होने चाहिए टू एक्सपेरिमेंट एंड फाइंड आउट द मोस्ट एफिशिएंट प्रोजेक्ट्स और एफिशिएंट ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स फॉर सिटीजन्स। फिर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, शॉर्ट टर्म्स प्रोजेक्ट होने चाहिए, मीडियम टर्म प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, जैसे कि क्वालिटी ऑफ इनकम टैक्स, वो इनकम टैक्स भरना, पेंशन मिलना, हाँ, पासपोर्ट या फिर वीज़ा, बैंकिंग सर्विसेज, आधार, इंश्योरेंस,
ये सारी चीज़ों ई गवर्नेंस के साथ बहुत आसानी से गवर्नमेंट कैन डिलीवर टू द सिटीजन्स, और उसके इम्प्लीमेंटेशन पर वर्क होना चाहिए बहुत ज़्यादा फॉर इट्स एफिशिएंसी एंड सिंप्लिसिटी। फिर लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए कि ई गवर्नेंस का, ताकि मिसयूज़ ना हो डेटा का। इट कैन बी अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, और कुछ अलग एक्ट भी बना सकते हो। ठीक है, तो ये था सेकेंड ARC का रिकमेंडेशंस था। फिर और पढ़ते ई गवर्नेंस के बारे में, अलग अलग सेक्टर्स में ई गवर्नेंस कैसा यूज़ हुआ है। अभी देखो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ई गवर्नेंस जो आइडेंटिफाई किए ग्लोबली, उसमें क्या क्या आते हैं। एक तो है स्टेजेस या फिर पार्ट्स ऑफ ई गवर्नेंस वी कैन से। एक तो है पहला सिंपल इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, मतलब क्या, वन वे कम्युनिकेशन, मतलब गवर्नमेंट सिर्फ एडवर्टाइज कर रही है या फिर एक इंफॉर्मेशन या फिर एक नोटिफिकेशन भेज रही है, तो ये वन वे कम्युनिकेशन हो गया, सिटीजन्स को मिल गया। दूसरा है टू वे कम्युनिकेशन, इसमें रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स दोनों आता है, मतलब गवर्नमेंट के साथ सिटीजनशिप बात कर रहे हैं। फिर है सर्विस एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फिर है इंटीग्रेशन बोथ वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली इन द डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल एज विद सिटीजन्स। फिर है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, मतलब वोटिंग, ऑनलाइन सर्वेज एक्सेट्रा, मतलब ब्रॉड बेस करना। तो ये जो ग्लोबली एनालाइज्ड स्टेजेस है, इट इज़ सिमिलर टू द OECD स्टेजेस विच वी स्टडीड इन द सेकेंड ARC रिलेटेड टू ई गवर्नेंस। अभी इसमें थिंकर्स कौन थे, अकॉर्डिंग टू Traunmuller and Lenk. Okay, e-governance is a global phenomenon today, and it is most recent paradigm in the public administration. The speed and the transparency associated with the e-governance has the potential to make public administration responsive and more effective. As development of e-governance gets past the phase of pilot project, it becomes more apparent that the sustainable development of e-governance shall be improved more and more in order to improve the sustainability and development of public administration itself, in the institutional framework as well as in the front end as well as back end of the government services, along with the technical expertise as well as anticipating the organizational and the futuristic challenge of e-governance. The public administration of today shall be ready to address them as well as find solution through them in order to provide efficient and more targeted services to people, in order to enhance the quality of public administration. E-governance uses modern range of technologies, मतलब एक तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, फिर इंटरनेट है, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, मोबाइल टावर, सैटेलाइट्स, वाईफाई एक्सेट्रा, ये सब चीज़ों को यूज़ करके बेसिकली ई गवर्नेंस डेवलप हो रहा है। अभी लेट्स टॉक अबाउट सम इनिशिएटिव्स अलग अलग जगह पे जो यूज़ हुए थे ई गवर्नेंस में। एक तो है ई सेवा केंद्र। ओके, ई सेवा केंद्र इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट development of e-governance, because it gives different types of services like payment of taxes, bills, registration of births and deaths, passport issuance या passport application, या फिर बहुत सारे जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड एक्सेट्रा। बहुत मतलब अभी वो चेंज होता रहता है उसका अलग अलग जुरिस्डिक्शन के हिसाब से, बट बेसिकली पैन कार्ड वगैरह तो ये जो बेसिक सर्विसेज है ये ई सेवा केंद्र बहुत अच्छे से देता है। फिर है हैरिस इन हरियाणा। हैरिस मतलब क्या, हरियाणा रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया था ई गवर्नेंस का हरियाणा में। फिर सरिता कॉन्सेप्ट इन महाराष्ट्र। सरिता क्या है, स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन, सरिता। फिर स्मार्ट गवर्नेंस, सिंपल, मॉरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस। इसमें रिड्रेसन, पब्लिक ग्रीवेंस का रिड्रेसल वगैरह, इसके लिए ई गवर्नेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये प्रोजेक्ट था, इट स्टार्टेड इन आंध्र प्रदेश। फिर फ्रेंड्स प्रोजेक्ट इन केरला, मतलब फास्ट, रिलायबल, इंस्टेंट एंड एफिशिएंट नेटवर्क ऑफ डिसबर्समेंट ऑफ सर्विसेज, ये एक IT मिशन था इन केरला। फिर ज्ञानदूत मिशन इन मध्य प्रदेश। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, द सिविल सर्वेंट्स टेक डिसीजंस विद कंसल्टेशन ऑफ द ग्राम पंचायत्स। ठीक है, फिर लोक मित्र प्रोजेक्ट, इसमें क्या है, इंटीग्रेटेड सिटीजन सर्विस सेंटर्स, मतलब E-KISOX, KIOSKS, ये राजस्थान में स्टार्ट हुआ था। फिर प्रोजेक्ट कार्ड,
द कंप्यूटर एडेड एडमिनिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट इन आंध्र प्रदेश, फिर भूमि प्रोजेक्ट इन कर्नाटका फॉर लैंड रेवेन्यू डॉक्यूमेंटेशन, फिर बहुत सारी चीज़ें, ई चौपाल प्रोजेक्ट, फिर NIC जो था नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, इट इज़ अ प्रीमियर ICT ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। It was established in 1976 for providing e-government and e-governance solutions, for adopting best practices, integrating services and global solutions. Okay, global solutions लाना भी बहुत ज़रूरी है, जो global practices है वो भी implement करना इंडिया लेवल पे वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट है। इवन ICT और ई गवर्नेंस इज़ यूज्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर एज वेल एज वुमेन एम्पावरमेंट सेक्टर, जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में उनके साथ कोऑर्डिनेशन करने के लिए, फिर अलग अलग इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ, ये भी अलग अलग अपने प्रोजेक्ट्स लाते हैं इन रूरल एरियाज़ वगैरह, वहाँ पे ई गवर्नेंस को डेवलप करने के लिए, टू प्रोवाइड द जो सर्विसेज है या फिर सबको इक्वालिटी मिलना चाहिए, उस हिसाब से जो प्रोजेक्ट्स वो लोग ने डेवलप किए उसके लिए ई गवर्नेंस यूज़ होता है, ठीक है। फिर ई गवर्नेंस इज़ यूज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द वेदर फोरकास्ट, फिर फ्यूचरिस्टिक फोरकास्ट जो है वेदर के, फॉर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, फिर टाइप ऑफ क्वालिटी ऑफ सीड्स वगैरह जो एग्रीकल्चर में यूज़ होने चाहिए, या फिर वुमेन के प्रोटेक्शन के लिए अलग अलग जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें डेवलपमेंट होता है ई गवर्नेंस का, चिल्ड्रन के लिए, PWD के लिए, ओल्ड एज के लिए, वीकर सेक्शंस के लिए खास करके ई गवर्नेंस का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, बिकॉज ई गवर्नेंस से वो सुविधाएं उनको बहुत जल्दी मिल सकती है जो अदरवाइज़ उनको बहुत रेड टेपिज़म के थ्रू जाने के बाद मिलती थी पहले, और ई गवर्नेंस आने के बाद वो सारे सर्विसेज उनको डायरेक्टली उनके सेलफोन या फिर कंप्यूटर पर मिल जाएगी, उनके बैंक अकाउंट से लिंक करके वगैरह। अभी ये जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, आयुष्मान भारत वगैरह एक्सेट्रा, सब कुछ ई गवर्नमेंट के अंदर आता है, विच जो एक्चुअली करंट अफेयर्स में हम लोग पढ़ते हैं वगैरह। अभी बोलने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसके लिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट था ई गवर्नेंस का, और ये टेक्निक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्रूवमेंट्स में ही आता है। तो ये हो गया चैप्टर 11।